নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰলৈ ষ্টুডিঅত মই ৰশ্মিতা গোস্বামী আৰু ফলে নতুন দিল্লীৰ ৰাহুল গান্ধী আৰু সোনিয়া গান্ধীক কৰিলে সাক্ষাৎ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বৰ জিতেন্দ্ৰ সিং ভূপেন বৰা ৰিপুন বৰা দেৱব্ৰত শইকীয়া প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ৰাণী নৰা সুস্মিতা দেৱ আব্দুল খালেক ৰাণা গোস্বামী কমলাক্ষ দেৱপুৰকাষ্ঠ জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰে সাক্ষাৎ কৰিলে সোনিয়া গান্ধী আৰু ৰাহুল গান্ধীক উপনিৰ্বাচন দলীয় অনুশাসন আৰু আগন্তুক দিনত দলক আগুৱাই নিয়াৰ নীতি সন্দৰ্ভত বৈঠকত আলোচনা কৰা হয় প্ৰমাণ জনাইছো যে নতুন দিল্লীত আজি ৰাহুল গান্ধী আৰু সোনিয়া গান্ধীয়ে সাক্ষাৎ কৰে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই জিতেন্দ্ৰ সিং ভূপেন বৰা ৰিপুন বৰা দেৱব্ৰত শইকীয়া প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ৰাণী নৰা সুস্মিতা দেৱ আব্দুল খালেক ৰাণা গোস্বামী কমলাক্ষ দেৱপুৰকাষ্ঠ জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰে সাক্ষাৎ কৰে সোনিয়া গান্ধী আৰু ৰাহুল গান্ধীক উপনিৰ্বাচন দলীয় অনুশাসন আৰু আগন্তুক দিনত দলক আগুৱাই নিয়াৰ নীতি সন্দৰ্ভত বৈঠকত আলোচনা কৰা হয় আৰু বিভিন্ন বিষয় সন্দৰ্ভত আজি আলোচনা কৰা হয় আৰু এপিসিসিৰ এটা সজাতি দল গৈ উপস্থিত হয় নতুন দিল্লীত আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে ৰাহুল গান্ধী আৰু সোনিয়া গান্ধী সাক্ষাৎ কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ এই প্ৰতিনিধি দলটোৱে উপনিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে বৈঠকত মিলিত হয় উপনিৰ্বাচনত কোনে কেনেদৰে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব কোন প্ৰাৰ্থীক দিয়া হ'ব তাক লৈ হয়তো আজি এই বৈঠকতেই চিন্তা চৰ্চা কৰা হৈছে আলোচনা কৰা হৈছে যিহেতু আগন্তুক এই উপনিৰ্বাচনৰ বাবেও এতিয়া প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলেই নিজৰ ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছে কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰিছে উপনিৰ্বাচনৰ বাবে গতিকে এই উপনিৰ্বাচনৰ বিষয় সন্দৰ্ভত আজি আলোচনা কৰা হয় আৰু সোনিয়া গান্ধী ৰাহুল গান্ধী সাক্ষাৎ কৰে দলটোৱে शीतला सस्य श्यामला मातरम् वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् পৰৱৰ্তী খবৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত প্ৰথমবাৰৰ বাবে জব্দ কৰা হ'ল কোকেইন গাঞ্জা সহ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে 18 গৰাকীকৈ পুৰুষ মহিলা মহানগৰীৰ সম্ভ্ৰান্ত পৰিয়ালৰ জন্মদিন পালনৰ নামত চলিল ৰেপ পাৰ্টি হেৰোইন নহয় এবাৰ কোকেইন গুৱাহাটীত প্ৰথমবাৰৰ বাবে জব্দ কোকেইন কোভিড প্ৰটকলৰ মাজতে গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত জন্মদিন পালনৰ নামত ৰেপ পাৰ্টি মাজনিশা কোকেইন গাঞ্জা সেৱন কৰি পতা বাৰ্থডে পাৰ্টিত চলিল আৰক্ষীৰ অভিযান কোকেইন গাঞ্জা সহ আটক হল 18 জন পুৰুষ মহিলা গুৱাহাটী মহানগৰীতো আৰম্ভ হৈছে হিন্দী চিনেমাত দেখুৱাৰ দৰে ড্ৰাগছ সেৱনৰ ৰেপ পাৰ্টি শুকুৰবাৰে নিশা মহানগৰীৰ খাৰগুলিৰ ৰিভেৰিয়া নামৰ এই এপাৰ্টমেণ্টটোৰ তৃতীয় মহলাত থকা বিকাশ জৈনৰ ফ্লেটত অমৃত বৰুৱা নামৰ এজনৰ জন্মদিন উদযাপনৰ নামত চলিছিল ড্ৰাগছৰ পাৰ্টি কোভিড প্ৰটকল ভংগ কৰি মাজ নিশালৈ কৰা এই পাৰ্টিৰ তথ্য লাভ কৰি লতাশিল আৰক্ষীয়ে নিশা প্ৰায় 11:30 বজাত চলালে অভিযান এপাৰ্টমেণ্টটোত অতৰ্কিতে চলোৱা অভিযানত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে 4 গ্ৰাম কোকেইন আৰু বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জা আটক হয় বিকাশ জৈন সহ 18 জনকৈ পুৰুষ মহিলা रूल ऑफ लॉ जितु হয় তার ভয় নাই এনেকুৱা মানুহ সো তেওঁ বিলাকে ড্ৰাগছ পাৰ্টি কৰি আছিল সো ইটু ৰেড হল আফটাৰ 11:30 এট নাইট ৰেডত আৰু এই মুহূৰ্তত স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক্ষণৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভাষণ দেশবাসীক সম্বোধন কৰিছে ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে আমি পুনপতি সম্প্ৰচাৰলৈ কৈছো उन सभी ने त्याग व बलिदान के अनूठे उदाहरण प्रस्तुत किए
उनके शौर्य और पराक्रम के बल पर ही आज हम और आप आज़ादी की सांस ले रहे हैं। मैं उन सभी अमर सेनानियों की पावन स्मृति को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। अनेक देशों की तरह हमारे राष्ट्र को भी विदेशी हुकूमत के दौरान बहुत अन्याय और अत्याचार सहने पड़े, परंतु भारत की विशेषता यह थी कि गांधी जी के नेतृत्व में हमारा स्वाधीनता आंदोलन सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित रहा। उन्होंने तथा अन्य सभी राष्ट्र नायकों ने भारत को औपनिवेशिक शासन से मुक्त करने का मार्ग तो दिखाया ही, साथ ही राष्ट्र के पुनर्निर्माण की रूपरेखा भी प्रस्तुत की। उन्होंने भारतीय जीवन मूल्यों और मानवीय गरिमा को पुनः स्थापित करने के लिए भी भरपूर प्रयास किए। अपने गणतंत्र की विगत 75 वर्षों की यात्रा पर जब हम नज़र डालते हैं तो हमें यह गर्व होता है कि हमने प्रगति पथ पर काफ़ी लंबी दूरी तय कर ली है। गांधी जी ने हमें यह सिखाया है कि गलत दिशा में तेज़ी से कदम बढ़ाने से अच्छा है कि सही दिशा में धीरे ही सही लेकिन सधे हुए कदमों से आगे बढ़ा जाए। अनेक परंपराओं से समृद्ध भारत के सबसे बड़े और जीवंत लोकतंत्र की अद्भुत सफलता को विश्व समुदाय सम्मान के साथ देखता है। प्यारे देशवासियों, हाल ही में संपन्न टोक्यो ओलंपिक में हमारे खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का गौरव बढ़ाया है। भारत ने ओलंपिक खेलों में अपनी भागीदारी के 121 वर्षों में सबसे अधिक मेडल जीतने का इतिहास रचा है। हमारी बेटियों ने अनेक बाधाओं को पार करते हुए खेल के मैदानों में विश्व स्तर की उत्कृष्टता हासिल की है। खेल कूद के साथ साथ जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी और सफलता में युगांतरकारी परिवर्तन हो रहे हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों से लेकर सशस्त्र बलों तक, प्रयोगशालाओं से लेकर खेल के मैदानों तक हमारी बेटियां अपनी अलग पहचान बना रही हैं। बेटियों की इस सफलता में मुझे भविष्य के विकसित भारत की झलक दिखाई देती है। मैं हर माता पिता से आग्रह करता हूं कि वे ऐसी होनहार बेटियों के परिवारों से शिक्षा लें और अपनी बेटियों को भी आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करें। पिछले साल की तरह महामारी के कारण इस वर्ष भी स्वतंत्रता दिवस समारोह बड़े पैमाने पर नहीं मनाए जा सकेंगे, लेकिन हम सबके हृदय में हरदम भरपूर उत्साह बना हुआ है। हालांकि महामारी की तीव्रता में कमी आई है, लेकिन कोरोना वायरस का प्रभाव अभी समाप्त नहीं हुआ है। इस वर्ष आई महामारी की दूसरी लहर के विनाशकारी प्रभाव से हम अभी तक उबर नहीं पाए हैं। पिछले वर्ष सभी लोगों के असाधारण प्रयासों के बल पर हम संक्रमण के प्रसार पर काबू पाने में सफल रहे थे। हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत ही कम समय में वैक्सीन तैयार करने का कठिन काम संपन्न कर लिया। इसलिए इस वर्ष के आरंभ में हम सब विश्वास से भरे हुए थे, क्योंकि हमने इतिहास का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया था। फिर भी कोरोना वायरस के नए रूपों और अन्य अप्रत्याशित कारणों के परिणाम स्वरूप हमें दूसरी लहर का भयावह प्रकोप झेलना पड़ा। मुझे इस बात का गहरा दुख है कि दूसरी लहर में बहुतेरे लोगों की प्राण रक्षा नहीं की जा सकी और बहुत से लोगों को भारी कष्ट सहने पड़े। यह अभूतपूर्व संकट का समय था। मैं पूरे देश की ओर से आप सभी पीड़ित परिवारों के दुख में बराबर का भागीदार हूँ। यह वायरस एक अदृश्य व शक्तिशाली शत्रु है, जिसका विज्ञान द्वारा सराहनीय गति के साथ सामना किया जा रहा है। हमें इस बात का संतोष है कि इस महामारी में हमने जितने लोगों की जानें गंवाई हैं, उससे अधिक लोगों की प्राण रक्षा कर सके हैं। एक बार फिर हम अपने सामूहिक संकल्प के बल पर ही दूसरी लहर में कमी देख पा रहे हैं। हर तरह के जोखिम उठाते हुए हमारे डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्यकर्मियों, प्रशासकों और अन्य कोरोना योद्धाओं के प्रयासों से कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाया जा रहा है।
कोविड की दूसरी लहर से हमारी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे पर बहुत दबाव पड़ा है। सच तो यह है कि विकसित अर्थव्यवस्थाओं समेत किसी भी देश का बुनियादी ढांचा इस विकराल संकट का सामना करने में समर्थ सिद्ध नहीं हुआ। हमने स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए। देश के नेतृत्व ने इस चुनौती का डटकर सामना किया। केंद्र सरकार के प्रयासों के साथ साथ राज्य सरकारों, निजी क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाओं, गैर सरकारी संगठनों तथा अन्य समूहों ने सक्रिय योगदान किया। इस असाधारण अभियान में कई देशों ने उदारता से अनिवार्य वस्तुएं उसी तरह साझा की जैसे भारत ने बहुत से देशों को दवाइयाँ, उपकरण और वैक्सीन उपलब्ध कराई थी। इस सहायता के लिए मैं विश्व समुदाय का आभार प्रकट करता हूँ। इन सभी प्रयासों के परिणाम स्वरूप काफ़ी हद तक सामान्य स्थिति बहाल हो गई है और अब हमारे अधिकांश देशवासी राहत की सांस ले रहे हैं। अब तक के अनुभव से यही सीख मिली है कि अभी हम सबको लगातार सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इस समय वैक्सीन हम सबके लिए विज्ञान द्वारा सुलभ कराया गया सर्वोत्तम सुरक्षा कवच है। हमारे देश में चल रहे विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 50 करोड़ से अधिक देशवासियों को वैक्सीन लग चुकी है। मैं सभी देशवासियों से आग्रह करता हूं कि वे प्रोटोकॉल के अनुरूप जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवा लें और दूसरों को भी प्रेरित करें। मेरे प्यारे देशवासियों, इस महामारी का प्रभाव अर्थव्यवस्था के लिए उतना ही विनाशकारी है जितना लोगों के स्वास्थ्य के लिए। सरकार गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों के साथ साथ छोटे और मध्यम उद्योगों की समस्याओं के विषय में भी चिंतित रही है। सरकार उन मजदूरों और उद्यमियों की ज़रूरतों के प्रति भी संवेदनशील रही है जिन्हें लॉकडाउन और आवागमन पर प्रतिबंधों के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। उनकी ज़रूरतों को समझते हुए सरकार ने पिछले वर्ष उन्हें राहत प्रदान करने के लिए बहुत से कदम उठाए थे। इस वर्ष भी सरकार ने मई और जून में करीब 80 करोड़ लोगों को अनाज उपलब्ध कराया। अब यह सहायता दीपावली तक के लिए बढ़ा दी गई है। इसके अलावा कोविड से प्रभावित कुछ उद्यमों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने हाल ही में 6,28,000 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है। यह तथ्य विशेष रूप से संतोषजनक है कि चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए एक वर्ष की अवधि में ही 23,220 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि सभी बाधाओं के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से कृषि के क्षेत्र में बढ़ोतरी जारी रही है। हाल ही में कानपुर देहात जिले में स्थित अपने पैतृक गांव परौख की यात्रा के दौरान मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन को सुगम बनाने के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच की मनोवैज्ञानिक दूरी अब पहले की तुलना में काफ़ी कम हो गई है। मूलतः भारत गाँव में ही बसता है, इसलिए उन्हें विकास के पैमानों पर पीछे नहीं रहने दिया जा सकता। इसीलिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सहित हमारे किसान भाई बहनों के लिए विशेष अभियानों पर बल दिया जा रहा है। ये सभी प्रयास आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना के अनुरूप हैं। हमारी अर्थव्यवस्था में निहित विकास की क्षमता पर दृढ़ विश्वास के साथ सरकार ने रक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक उड्डयन, विद्युत तथा अन्य क्षेत्रों में निवेश को और अधिक सरल बनाया है। सरकार द्वारा पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों, विशेष रूप से सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के नवीन प्रयासों की विश्वव्यापी प्रशंसा हो रही है। जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में सुधार होता है तब उसका सकारात्मक प्रभाव देशवासियों की ईज ऑफ लिविंग पर भी पड़ता है। इसके अलावा जन कल्याण की योजनाओं पर
विशेष जोर दिया जा रहा है। उदाहरण के लिए 70,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना की बदौलत अपना खुद का घर होने का सपना अब साकार हो रहा है। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में किए गए अनेक सुधारों से हमारे अन्नदाता किसान और भी सशक्त होंगे और उन्हें अपने उत्पादों की बेहतर कीमत प्राप्त होगी। सरकार ने प्रत्येक देशवासी की क्षमता को विकसित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जिनमें से कुछ का ही उल्लेख मैंने किया है। प्यारे राष्ट्रपतिगৰাকীৰ ভাষণ। খবৰ নিজাম গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ সময় হৈছে বিৰতিৰ। पावर स्वैग चल शुरू हो जा माय टन कर दे सब कुछ ऑन ट्रैक स्ट्रांग है माय टन फ्लेक्सिबल माय टन बड़ा समझदार निर्माणर मानदंड माय टन বাতৰি মাছলৈ ৰাজপথত বৃদ্ধি হ'ব পৰিবহণ বিভাগে নিৰ্ধাৰণ কৰা যান বাহনৰ গতিবেগ 40 কিলোমিটাৰৰ পৰিৱৰ্তে হ'ব 60 কিলোমিটাৰ। প্ৰথমবাৰ আইন ভংগ কৰিলে বাহনৰ গৰাকীলৈ যাব জাননী আৰু তাৰ পিছতহে ভৰিব লাগিব জৰিমনা। 40ৰ পৰিৱৰ্তে নিৰ্ধাৰণ হ'ব 60। অচিৰে প্ৰকাশ পাব পৰিবহণ বিভাগৰ নতুন জাননী। সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। হাইৱে আৰু PWD ডিপাৰ্টমেণ্টে মিলি 40 স্পীড বান্ধি দিছে। মই তেওঁক ৰাতিপুৱা কৈছোঁ যে সেই স্পীড লিমিটটো 60লৈকে লৈ যাব লাগে। এয়াই নহয়, জৰিমনাৰ ক্ষেত্ৰতো থাকিব কিছু শিথিলতা। এবাৰ লিমিট অতিক্ৰম কৰিলে ভৰিব নালাগে জৰিমনা। প্ৰথমবাৰ নীতি ভংগকাৰীৰ বিৰুদ্ধে জাৰি হ'ব জাননী, তাৰ পাছত জৰিমনা। ফাইন প্ৰথমতে ফাইন নকৰি প্ৰথমতে ৱাৰ্ণিং দি পিছত ফাইন কৰিব লাগে। কিন্তু আৰু এটা কথা খুব যুক্তিপূৰ্ণ, সেইটো হ'ল যোৱা বছৰ হাইৱে এক্সিডেণ্টত ৰোড এক্সিডেণ্টত 3,000 লোকৰ মৃত্যু হৈছে। সেইকাৰণে দুইটা ছাইড ৰাইজে ফাইন দিয়াৰ আগতে নটিচ পাওক, স্পীড মিটাৰটো ডিচেণ্ট হওক, কিন্তু লগত যাতে ৰোড এক্সিডেণ্টত মানুহৰ মৃত্যু নহয় সেই দিশটোৰ প্ৰতিও চকু ৰাখি মোৰ যিমান দূৰ বিশ্বাস মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অহা 2-3 দিনত আপোনালোকক সম্বোধন কৰিব। শেহতীয়াকৈ পৰিবহণ বিভাগে আৰম্ভ কৰা স্পীড লিমিট অভিযানক লৈ চলিছে এতিয়া ব্যাপক চৰ্চা। বহুতে চৰকাৰখনৰ এয়া ৰাজহ সংগ্ৰহৰ এক মাধ্যম বুলি অভিহিত কৰিছে। আৰু এনে ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘোষণাত শিথিলতা স্পীড লিমিট ব্যৱস্থাৰ। কিন্তু যি নহওক, এই গোটেই নটিফিকেশ্যনখনত যি অসুবিধা আছে গোটেইখিনি দূৰ কৰি অহা 2-3 দিনৰ ভিতৰত মন্ত্ৰী পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়াই আপোনালোকক সম্বোধন কৰিব। বলেন ভট্টাচাৰ্য ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। একপক্ষীয় যুদ্ধবিৰতিৰ ম্যাদ পুনৰ 3 মাহলৈ বৃদ্ধি কৰিছে আলফা স্বাধীনে। আলফা স্বাধীনৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰাই ঘোষণা কৰে এই কথা। আলফা স্বাধীনৰ সিদ্ধান্তক আদৰণি জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। যুদ্ধবিৰতিৰ ম্যাদ 3 মাহলৈকে বঢ়ালে আলফা স্বাধীনে। শনিবাৰে ম্যাদ খোলাৰ দিনটোতেই যুদ্ধবিৰতিৰ ম্যাদ বঢ়ালে পৰেশ বৰুৱাই। এয়া এক শুভ সংকেত, ইতিবাচক পদক্ষেপ। এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। কোভিড পৰিস্থিতিৰ দোহাই দি বিগত 15 মেত প্ৰথমবাৰৰ বাবে 3 মাহৰ বাবে একপক্ষীয় যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰিছিল পৰেশ বৰুৱাই। এই যুদ্ধবিৰতি শনিবাৰে সমাপ্তি ঘটাৰ দিনটোতেই যুদ্ধবিৰতিৰ ম্যাদ বৃদ্ধি কৰে পৰেশ বৰুৱাই। এক প্ৰেছ বিবৃতিৰ যোগেদি আলফা স্বাধীনৰ উপসভাপতি তথা মুখ্য সেনাপ্ৰধান পৰেশ বৰুৱাই কোভিড পৰিস্থিতি উন্নতি নোহোৱাৰ বাবে যুদ্ধবিৰতিৰ ম্যাদ 3 মাহলৈ বৃদ্ধি কৰা হয় বুলি শনিবাৰে ঘোষণা কৰে। এই যুদ্ধবিৰতিৰ সময়ছোৱাত বন্ধ থাকিব আলফা স্বাধীনৰ সকলো সামৰিক অভিযান। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই আলফা স্বাধীনৰ এই যুদ্ধবিৰতি স্থায়ী হোৱাৰ কামনা কৰে। This is a very, very positive and encouraging announcement. ইয়াৰ আগতেও 15 আগষ্টত
প্ৰচলিত যি বন্ধ ঘোষণা কৰাৰ নিয়ম আছিল তেওঁলোকৰ সংগঠনৰ পৰা এইবাৰ সেই বন্ধ ঘোষণা কৰাৰ পৰাও আলফা বিৰত আছে। কোভিড পেণ্ডেমিকৰ সময়ত আলফাই লোৱা ব্যৱস্থা নিশ্চয় প্ৰশংসনীয়। এই যুদ্ধবিৰতি স্থায়ী হওক। আলফাৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আলফা ৰাষ্ট্ৰৰ মূল খুঁটিলৈ সন্মানেৰে সৈতে ঘূৰি আহক, তাক মই নিশ্চয় কামনা কৰিম। উল্লেখযোগ্য, ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ৰে পৰা আলফা স্বাধীনৰ মুৰব্বী পৰেশ বৰুৱাই বিশেষ সদ্ভাৱ প্ৰদৰ্শন কৰি অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। আলোচনাৰ এক ইতিবাচক পৰিৱেশ গঢ়িবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মা আৰু পৰেশ বৰুৱাই বুজাবুজিৰে আগবাঢ়িব লাগিব বুলি সদৰি কৰিছে। পৰস্পৰে পৰস্পৰক সন্মান জনাই ইতিবাচক দিশেৰে আগবাঢ়ি গৈ 4 দশক পুৰণি সমস্যা সমাধানত গুৰুত্ব দিব বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। অৱশ্যে আলোচনাৰ খাতিৰত কেতবোৰ গোপনীয়তা অৱলম্বনৰো পোষকতা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে বিজু কুমাৰ ডেকা, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ সময় হৈছে আন এটি বিৰতিৰ। चल शुरू हो जा my turn कर दे सब कुछ on track strong है my turn flexible है my turn बड़ा समझदार নির্মাণৰ মানদণ্ড my turn